Hello everyone, welcome you all. Today in our practical lecture we are going to discuss about a algal genus, the characteristic features of the algal genus Ectocarpus. Previously we have discussed about the Polysiphonia. So Ectocarpus is the member of family Phaeophyceae. We know in the algal division there are different kind of the families based upon the pigments or the colors, like Chlorophyceae for green algae, Phaeophyceae for brown algae, Rhodophyceae for red algae, Cyanophyceae for blue-green algae and all. So particularly this genus, the Ectocarpus, is the member of Phaeophyceae family, the brown algae family. Okay. Generally the size of the Ectocarpus is very small as compared to other Phaeophyceae members, because the Rhodophyceae, the red algae, the Phaeophyceae, the brown algae, the members of these family are found in marine ecosystem like oceans and seas. So the size is comparatively very larger. All of the Phaeophyceae and Rhodophyceae members are macroscopic. Some of the members even extend up to 150 feet. कुछ members तो 150 feet के भी होते हैं, ठीक है. But Ectocarpus is comparatively very small. Its size ranges from 0.5 centimeter to 1 to 2 centimeter. So it's comparatively very small genus. But still it is not microscopic genus. We can clearly see it by naked eyes. Naturally it is of brown color, but since we are having the preserved specimen, so the color is being lost. So we can see the white color threads inside this glass. There are the white cotton like threads. This is the Ectocarpus. If we will stain it with the safranin, we will clearly see the cells and the reproductive structure like sporangiums inside them. So taking the overview only, we can see these threads. So here we are, this whitish portion, this is the Ectocarpus thallus. So the habitat is marine ecosystem. They are generally free floating inside the oceans, or they may be epiphytic, means they may be attached to the another plant or another algae. They may be free floating, they may be attached to the another plant or algae, or they may be attached to any substratum like any rock. किसी पत्थर पे भी attach हो सकते हैं, किसी island या rock के बीच में, ठीक है. So free floating, epiphytic या substratum से attach हो सकते हैं. Generally size is 0.5 to 1 or 2 centimeter. Comparatively comparison to other members of the Phaeophyceae, it's very small. So talking about the vegetative structure, it is a filamentous one. Ectocarpus जो होता है filamentous होता है, ठीक है. Branches होती हैं इसमें. स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटे एक्टोकार्पस की, सो इट इज़ काइंड ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर. इस तरह से थ्रेड्स होते हैं, मेन एक्सिस होता है, उससे फिलामेंट्स निकलते हैं. ओके. ये पोर्शन जो होता है ये सबस्ट्रेटम से बाइंड होता है. तो इसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम होता है. प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम. प्रोस्टेट सिस्टम वो होता है जो इस तरह से हो, हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है. जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो होता है वर्टिकली, कि बिल्कुल इरेक्ट स्टैंडिंग हो. ओके. तो इसके जो इरेक्ट सिस्टम होते हैं, दिस इरेक्ट सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम. ये है इसका प्रोस्टेट सिस्टम, दिस वन. सो प्रोस्टेट सिस्टम इज अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम. ओके, सपोज दिस इज द सबस्ट्रेटम. तो प्रोस्टेट सिस्टम जो है इसका, जो पैरेलल है सबस्ट्रेटम के या जो हॉरिजॉन्टल है, वो अटैच है सबस्ट्रेटम से, जबकि इरेक्ट सिस्टम खुद प्रोस्टेट सिस्टम से अराइज हो रहा है, ठीक है. इरेक्ट सिस्टम जो वर्टिकली होता है उसको इरेक्ट सिस्टम बोलते हैं एल्गी में या प्लांट्स में. प्रोस्टेट सिस्टम जो आपका लेटरल ब्रांचेज होती हैं एक तरह से, ठीक है, उनको हम प्रोस्टेट सिस्टम बोलते हैं. तो इसका प्रोस्टेट सिस्टम सबस्ट्रेटम से अटैच है और इसका इरेक्ट सिस्टम सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है, वो निकल रहा है प्रोस्टेट सिस्टम की ब्रांचेज से. तो इस तरह की अपीयरेंस होती है एक्टोकार्पस की. हार्डली 1 to 2 सेंटीमीटर हाइट होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है, ठीक है. फियोफाइसी का मेंबर है, मैरीन इकोसिस्टम में मिलता है, मीन्स ओशन में या सी में मिलता है ये. चलिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो इसके थैलस पे सपोज ये ब्रांचेज हैं, ठीक है. स्क्वेरिश सेल होती हैं इसमें, राउंडेड सेल्स नहीं होती. इस तरह से एक ब्रांच में स्क्वेरिश सेल्स हैं. सेल्स में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जो किसी प्लांट सेल का कैरेक्टर होता है वही सारे कैरेक्टर्स हैं. क्रोमेटोफोर्स के अंदर पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर होता है इनका. फ्यूकोजैंथिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्राउन कलर होता है इनका एक्टोकार्पस का. ओके. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें या लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके अंदर स्पोरेंजियम्स होते हैं, ठीक है. स्पोरेंजियम होते हैं स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स. स्पोरेंजियम होंगे, उनके अंदर स्पोर्स होंगे. तो 2 तरह के स्पोरेंजियम होते हैं बेटा टोटल. सोन एक होता है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम,
ओके, एक होता है प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर केवल इतना ही था, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम है। ओके, फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है। सेकेंड जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम होते हैं, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम भी स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस से। तो खुद प्लांट है डिप्लॉइड, स्पोरोफिटिक प्लांट है, ठीक है, स्पोर बियर कर रहा है, तो ये दोनों स्पोरेंजियम भी डिप्लॉइड हैं। ठीक है, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम जो होता है, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है बेटे जूस्पोर्स। ठीक है, जूस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जूस्पोर्स प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से। तो क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो ये जूस्पोर्स भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ये जूस्पोर्स जर्मिनेट करके सीधा दोबारा से एक एक्टोकार्पस प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ प्लूरीलॉक्यूलर का। आपको ये याद रखना है कि प्लूरीलॉक्यूलर माइटोसिस से जूस्पोर बनाता है जो कि डिप्लॉइड है। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम भी स्पोर्स बनाता है। इन स्पोर्स को बोला जाता है मियोजूस्पोर्स। ठीक है, ये बनाता है मियोसिस से। यूनिलॉक्यूलर वाला मियोसिस से बनाता है। तो मियोजूस्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। मियोजोस्पोर्स बेटा गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। मियोजोस्पोर जो होगा जर्मिनेट होगा और एक गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएगा, यानी हैप्लॉइड प्लांट बनाएगा। ठीक है, इस पे गैमेटेंजिया आएंगे, मेल गैमेटेंजिया, फीमेल गैमेटेंजिया, लेकिन इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो टोटल 2 गैमीट्स बन जाएंगे, दोनों एक जैसे होंगे। मेल फीमेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, गैमीट बने। गैमीट आपस में फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट फिर से डिप्लॉइड होगा और जाइगोट जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देगा। पहले हमें अभी स्पोरेंजियम में डिफरेंस पढ़ना है कि यूनिलॉक्यूलर वाले हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, प्लूलॉक्यूलर वाले डिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। ये एक्टोकार्पस है, ठीक है, डिप्लॉइड एक्टोकार्पस है। इसके प्लूरलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया क्या करते हैं, जूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये भी डिप्लॉइड है, स्पोरेंजियम भी जूस्पोर्स प्रोड्यूस करे, ये भी डिप्लॉइड है। ठीक है, ये जूस्पोर्स बेटा सीधा जर्मिनेट होके दोबारा से डिप्लॉइड एक्टोकार्पस प्लांट बना देते हैं। तो कोई यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ओके, अब देखिए एक्टोकार्पस के जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैं, ठीक है, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मियोजूस्पोर्स। ये प्रोड्यूस करे मियोसिस से। तो स्पोरेंजियम तो डिप्लॉइड था, मियोसिस हुआ तो ये स्पोर हुए हैप्लॉइड। ये स्पोर जर्मिनेट करके बेटा एक नए एक्टोकार्पस बनाते हैं, लेकिन ये एक्टोकार्पस अभी क्या है, गैमेटोफिटिक है। क्योंकि देखिए स्पोर जर्मिनेट हुआ हैप्लॉइड, तो ये भी क्या बना, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड एक्टोकार्पस और डिप्लॉइड एक्टोकार्पस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता मॉर्फोलॉजिकली। हम नहीं बता सकते कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो हैप्लॉइड एक्टोकार्पस के ऊपर गैमेटेंजिया आते हैं या गैमेटोफाइट्स आते हैं, तो हम बोलेंगे यूनिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया। अब गैमेटेंजिया अलग अलग होने चाहिए थे, माइक्रो गैमेटेंजिया एंड मेगा गैमेटेंजिया, लेकिन इसमें एक ही जैसे गैमीट्स होते हैं सारे। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। तो ये दोनों फ्यूज़ होकर दोनों गैमीट एन और एन, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट दोबारा से क्या है, डिप्लॉइड। यहाँ से डिप्लॉइड फिर शुरू हो गई, गैमेटेंजिया हैप्लॉइड थे, आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया क्योंकि आइसोगैमीट्स हैं, एक जैसे गैमीट। अब जाइगोट दोबारा से जर्मिनेट करके, ठीक है, क्या बना देगा, स्पोरोफिटिक एक्टोकार्पस बना देगा। ये लाइफ साइकिल है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ द स्लाइड्स फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ एक्टोकार्पस। तो देखिए कभी भी बॉटनी में स्लाइड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं विच वी विल रिमेंबर। अगर टिश्यू कटिंग करना होता है बेटा, सेक्शन कटिंग, तो ब्लेड चाहिए, बट वी विल नॉट नीड ब्लेड राइट नाउ। ये फोर्सेप होता है जिससे हम स्पेसिमेन को निकालेंगे। नीडल्स कवर स्लिप प्लेस करने के लिए प्लस सेपरेट करने के लिए स्पेसिमेन को यूज़फुल होती है। स्लाइड बनाने के लिए स्लाइड्स चाहिए, कवर स्लिप चाहिए। स्पेसिमेन को स्लाइड पे रखने के बाद हम कवर स्लिप प्लेस करते हैं बिफोर लुकिंग इट इनटू द माइक्रोस्कोप। स्पेसिमेन वाइट कलर का है, इसमें कलर्स नहीं है, तो उसको स्टेन करने के लिए हम डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक फंगस के लिए ब्रोमोफिनॉल ब्लू या एसिटोकार्मिन यूज़ किया जाता है, एल्गी के लिए सैफरनिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा स्टेन हो जाए तो उसको माउंट करने के लिए ग्लिसरीन या वाटर यूज़ करते हैं। ब्रश होनी चाहिए हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स आवर स्पेसिमेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड लेंगे। ठीक है, स्लाइड पे हम स्पेसिमेन निकालेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन को हम इसको कैप को रिमूव करके केवल एक ट्विग निकाल लेंगे, कोई भी छोटी सी। एक्टोकार्पस अभी हमने देखा था, एक छोटा सा हम ट्विग निकालेंगे, उसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे।
ठीक है। देन हम उसको स्टेन करेंगे स्पेसिमेन को रखने के बाद। देन वी विल प्लेस द कवर स्लिप, फिर हम उसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। जब हम कवर स्लिप लगाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि कवर स्लिप को केवल हाथ से ही उठा के और सीधा नहीं रख देंगे हम, ठीक है। वी विल नॉट प्लेस इट एज यूजुअल, ठीक है। एक प्रॉपर मेथड होता है, तो फॉर दैट प्रॉपर मेथड आई एम जस्ट प्लेसिंग फ़ोन राइट नाउ। तो सबसे पहले हम स्पेसिमेन को निकालेंगे, ठीक है। हम एक स्लाइड लेंगे, हम स्पेसिमेन की एक ट्विग निकालेंगे। हियर इज अ थ्रेड ऑफ द स्पेसिमेन। हमने इसको प्लेस कर दिया स्लाइड पे, ठीक है। फिर हम, क्योंकि अब ये वाइट है कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसमें हम कलर स्टेनिंग करेंगे। दिस आई हैव स्टेन्ड। द स्पेसिमेन एंड नाउ आई विल प्लेस द कवर स्लिप। ये होती है बेटे कवर स्लिप। कवर स्लिप जब हम प्लेस करते हैं तो वी विल फर्स्टली होल्ड इट 90 डिग्री, देन वी विल जस्ट मेक इट एट अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है। हम 45 डिग्री एंगल करेंगे इसको बेंड, और फिर हम एकदम से निडल को रिमूव कर लेंगे। इससे कवर स्लिप जब प्लेस होगी तो बबल्स नहीं बनते। इस तरह से हमारी स्लाइड क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। ओके, नाउ वी विल लुक दिस स्लाइड एंड ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी studied. Okay, we will go through the microscope. Here is the simple compound microscope. This runs on the natural light. यहाँ पे मिरर होता है, यहाँ से लाइट आती है लेंस के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के हैं, ठीक है। दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 45। जिस तरह से मोबाइल में जूम होता है इस तरह से डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस हैं। दिस इज़ 10x, दिस इज़ 10x, दिस इज़ 100x। ओके, तो 0.5, 10, 45 एंड 100x मैग्नीफिकेशन है, जितना जूम करके हम देखना चाहते हैं। दिस इज आई लेंस, यहाँ से हम देखते हैं स्पेसिमेंट्स को। ओके, सो नाउ आई विल प्लेस द स्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोप एंड वी विल ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स। सो हेयर वी विल हैव लुक एट आवर स्पेसिमेन। See, we can clearly see the filaments and even we can see the septate of the cells. The cells are separated. This is the 10x magnification. Vegetative structure is clear. Even some of the sporangias are also clear. So it was the quick overview of the Ectocarpus genus. So that's all for today. Have a nice day.